relationship between LK Advani and Narendra Modi is a known fact. But now with exit polls predicting that there could be the formation of a Modi-led government in the centre on the 16th of May, seems like Advani faces a bigger threat of being sidelined. Here's the report. Today's agenda: the informal ministry-making exercise. What role to give Advani and MM Joshi? Yes, that was the agenda of the meet held at Narendra Modi's residence in Gandhinagar. The brigade that marched to Modi's residence included Party President Rajnath Singh, Arun Jaitley and even Nitin Gadkari. LK Advani has been upset over many decisions of the party, but time and again he has only been silenced by the party's top brass. The senior-most leader, someone who laid the foundation stone of the party, was seen being clearly silenced by the saffron camp. The once prime ministerial hopeful is now surely eyeing an important portfolio at the centre if the NDA comes to power. However, the way in which his wishes have been suppressed in the past few months, many politicos have asserted that their decision might come as another insult to the veteran. देखिए, अडवाणी जी बहरहाल एक सीनियर लीडर हैं, सबसे बुजुर्ग आदमी हैं, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे बुजुर्ग आदमी हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो अडवाणी बचाओ आंदोलन चला रहे हैं और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं इस उम्र में उनके साथ और ज्यादा ज्यादतियां ना हों। अब आडवाणी जी का भविष्य उनके शिष्य तय करेंगे। शायद यही भारतीय संस्कृति है। बहरहाल ये उनका अंदरूनी मामला है। वो आडवाणी जी के साथ जो करना चाहे सो करे, हमें क्या एतराज हो सकता है। अब ये आडवाणी जी को तय करना है कि उनके लिए निर्धारित की गई जो भूमिका होगी वो उन्हें स्वीकार है या नहीं। Meanwhile, even Murli Manohar Joshi, another veteran leader of the party who guided Modi during Joshi's Bharat Ekta Yatra, has changed equations with the prime ministerial candidate. देखिए, जो सारी जो कमांड कहिए उसको या जो रिमोट कंट्रोल है वो आरएसएस के पास है। वो आरएसएस को तय कर रहा है कि अडवाणी जी क्या करेंगे, मुरली मनोहर जोशी जी क्या करेंगे और दूसरे लोग क्या करेंगे, किनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये तो एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि राजनाथ जी के अध्यक्ष बनाने से लेकर और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित करने तक आप देखिए कि उसमें आरएसएस की भूमिका रही है। और आज भी मैं मानता हूं कि बिना आरएसएस की मर्जी के कुछ भी भारतीय जनता पार्टी में होना असंभव है। इसलिए जो आरएसएस कहेगा वो करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। Though the party held an informal ministry-making exercise, many speculated that the party will take the final decision only after consulting the RSS. RSS Supremo Mohan Bhagwat will hold a meeting tomorrow. However, the leader has made it pretty clear that leaders above 75 have to make way for the younger lot. So what is in store for the veterans? Maybe a semi-retirement. Something like a governor's post like Sheila Dikshit. Well, we don't know yet. What we do know is that there is a huge possibility of their decision coming as a huge disappointment to the veterans. A News 9 report. And while it looks like even before Modi becomes the Prime Minister of the country, there are few from his own party who are denting his image. And this time it is none other than the notorious Giriraj Singh. Take a look what he said today. Giriraj Singh in the line of fire again. Targets one particular community and then does a U-turn. देश में जितने आतंकवादी गतिविधि में लोग पकड़े जा रहे हैं वो एक समुदाय से जुड़े हैं। मैं नहीं कहता कि उस समुदाय के सारे लोग आतंकवादी हैं, लेकिन पकड़े जाने वाला सभी व्यक्ति एक समुदाय से हैं। क्या धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाले लोग क्यों चुप हो जाते हैं? आज देश के सामने ये
धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करने का अवसर है। मीडिया के मित्रों से हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर दिखाना हो तो मैं जितनी बातें कहता हूं उतना दिखाएं, उतने पर ही टिप्पणी करें कि देश में कुछ लोग हैं जो आतंकवाद परस्त हैं और पाकिस्तान परस्त हैं। क्या कुछ ही लोग तो हैं जो आतंकवाद गतिविधि से जुड़े हुए हैं? हमने अगर कोई कहा है कि कोई गलत साबित कर दे, क्या पाकिस्तान हमारे आंतरिक सुरक्षा को डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं? अगर पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण दे रहा है तो मैंने कौन सा गलत कहा? आतंकवाद परस्त, पाकिस्तान परस्त ऐसे लोगों का भारत में क्या सम्मान करना चाहिए? Yes, that is how Giriraj Singh has hit the headlines this time around. This came out of his mouth while he was explaining the blunders he committed while speaking at Bokaro last month. He was booked by the Election Commission for his alleged hate speech from 3 places and was absconding until he surrendered and was given interim bail. And today's controversial speech again came in Bokaro in the backdrop of a press conference conducted with regard to his previous hate speech. While he said that the pro-Pakistan outfits are posing as a hurdle for Modi becoming the Prime Minister, the party itself is embarrassed and everybody from the party chose not to comment on it. Even as he did a U-turn, his words didn't really reflect any amount of regret for allegedly dragging religion into politics. Entire political fraternity fumes. This comment drew sharp remarks from the rest of the political fraternity. शायद उन्हें मालूम नहीं है कि आतंकवादी जो अभी तक पकड़े गए हैं वो सिर्फ एक कम्युनिटी के नहीं पकड़े गए हैं, साध्वी प्रियज्ञा भी उसमें शामिल है। लेकिन इस तरीके से आतंकवादियों को धर्म में बांटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही बात हम कहते चले आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। उन्हें हर चीज के अंदर धर्म नजर आता है, फिरका परस्ती नजर आती है, देश को धर्म के बीच में तोड़ देना चाहते हैं। और ये बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करती चली आ रही। उनकी सोच और मानसिकता इससे आगे बढ़ ही नहीं सकती है। मेरा ये मानना है कि उनको थोड़ी सी हिस्ट्री का जानकारी अगर थोड़ी बहुत होती तो शायद वो ये बात ना कहते। नहीं, उनकी उम्र का तकाजा नहीं है, उनकी मानसिकता है, उनका पागलपन है, उनकी नफरत है किसी एक कम्युनिटी के लिए, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। और मैं समझता हूं कि इस तरह के लोग जो हैं देश के अंदर कोई अच्छा काम तो कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकते। Even as Giriraj Singh said that pro-Pakistan outfits were posing a hindrance to Modi becoming the Prime Minister, some opined that it was people like Giriraj Singh who are denting his and the party's image. देखिए, गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है उससे साफ जाहिर है कि गिरिराज जैसे लोग जो हैं वो भाजपा के विरोधी है, नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े दुश्मन है। इससे पहले कि नरेंद्र मोदी अपने पैर भी जमाए, इससे पहले कि सरकार बनाए, उन्होंने इस तरह की बातें शुरू कर दी हैं जिससे झगड़ा पैदा हो, जिससे कि नुकसान हो। और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है कि एक गलत कदम हो जाए और पूरी दुनिया पीछे पड़ जाए। इसलिए ये जो गिरिराज जैसे लोग जो हैं इनको न राजनीति की समझ है, न देश की समझ है, न समाज की समझ है। Meanwhile, there were many who said that his speech only reflected the hidden agenda of the RSS, which the party is going to implement if they come to the centre. आचार्य धर्मेंद्र देव ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता होने के लायक नहीं है। गिरिराज किशोर ने कहा है कि सभी आतंकी एक ही जात के क्यों होते हैं। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के उसी हिडन एजेंडे को, छुपे हुए एजेंडे को अब लागू करेंगे जो आरएसएस ने तय किया है। देश के लिए अच्छे के बजाय अब बुरे दिन आने वाले। जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं उन्हें आप टेररिस्ट कहिए, दंगाई कहिए, उनकी कोई जाति, धर्म और मजहब नहीं होता। लेकिन जिस संदर्भ में गिरिराज सिंह इस प्रश्न को उछाल रहे हैं, उन्हें देखना होगा कि मालेगांव कांड में कौन था। समझौता एक्सप्रेस में जो धमाका हुआ उसमें कौन लोग थे, उन लोगों के धर्म मजहब क्या थे।
तो ये बात कहना एक ओछी राजनीति और गंदी सोच का मैं समझता हूं कि परिचायक है। But well, this jibe of his has left the entire party and the RSS red-faced. Even RSS supporters were heard slamming his comments and saying that it was wrong to generalize things on the basis of religion. गिरिराज सिंह का बयान अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने सुना है और उन्होंने जो बात कही है वो ये है कि जितने आतंकवादी पकड़े गए अभी तक वो एक ही समुदाय के हैं और इसलिए ऐसे सारे लोगों के लिए हिंदुस्तान में कोई स्थान नहीं है आतंकवादियों के लिए, ऐसा उनका कहना है। तो मैं समझता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ जो एक जनभावना है उसका ये उन्होंने मूर्त रूप उसको दिया होगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग पकड़े गए हैं वो एक ही समुदाय के हैं इसलिए वो सारा समुदाय आतंकवादी है, ये कहना गलत होगा। इस प्रकार का एक जनरलाइजेशन हम नहीं कर सकते हैं। जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है, वो किसी समुदाय का हो, किसी मजहब का हो। And to top it all, like the previous time, there were some who said that Giriraj was just mentally unstable and it is not important to react to whatever he says. गिरिराज सिंह जैसे लोग मानसिक रोगी हैं। इसके पहले उनको इसी किस्म के वाहियात बयानों के लिए इलेक्शन कमीशन फटकार चुका है और उन पर कार्रवाई भी चल रही है। इसके बावजूद वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ सकते। अब ऐसी घटिया सोच के लोगों के बयानों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करूं? The Union Minister of Minority Affairs too left no stone unturned to slam the leader's comments and associate the jibe as a reflection of the RSS's ideologies. इंसानियत के खिलाफ जो भी है, चाहे एक कम्युनल डिस्टर्बेंस करके किसी को मर्डर करें, किसी को कत्ल करें, वो भी एक आतंकवाद है। और किसी भी तरह का मुल्क में बदअमनी फैलाना भी एक आतंकवाद है। एक ही कम्युनिटी के लोग आतंकवाद में इन्वॉल्व नहीं हैं, जैसा कि समझौता ब्लास्ट कर लीजिए और मालेगांव ब्लास्ट कर लीजिए, हैदराबाद के ब्लास्ट में लीजिए, हर कम्युनिटी के लोग इसमें इन्वॉल्व। तो पर्टिकुलरली ये कम्युनिटी को टारगेट करना एक इनका एजेंडा है। आरएसएस और ऐसे जहन रखने वाले लोगों का एक एजेंडा है। Modi has himself stayed away from the pro-Hindu agenda associated with the RSS and has been campaigning on the lines of only development. So with this coming to light this time around, will Modi react or do something about it? Though Modi did warn the leader for his irresponsible remark last time, will he take some action against him for not mending his ways? Isn't it high time for the leader to refrain from dividing people based on religion? Let us wait and watch whether Modi just tweets this time around or takes some stern action. A News 9 report.